Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@of affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 96773338. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 14, 15 और 16 जनवरी के हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड एज यूजुअल फ्रेंड्स, हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो पुराने वन लाइनर्स करंट अफेयर्स होते हैं, एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में उनको डिस्कस करेंगे। एंड जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सजेशन, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल यूथ डे? आपका 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं। एक 9 जनवरी को एक मैंने इंपॉर्टेंट टर्म बताया था याद रखने के लिए, वो क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस। और रीज़न क्या है? महात्मा गांधी हमारे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इनको ऑनर करने के लिए ही हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। ये एक जीएस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी कब इंडिया लौटे थे, तो ये 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा, इन्होंने अभी 2 स्कीम्स लॉन्च की। एक तो है आपकी शेयर्ड बस स्कूल बस सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, नॉट जस्ट इन मेघालय, हर जगह पर आपके जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको ये समझ लो 1 घंटा तो कहीं नहीं गया मिनिमम मान के चलिए। तो इसी कंजेशन को अवॉइड करने के लिए एक शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम लॉन्च की गई मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और उन्होंने ही एक एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम को भी लॉन्च करा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नासा की बात करते हैं। नासा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। जाक्सा किसकी है? जापान की। रॉसकॉस्मॉस किसकी है? रशिया की। फिर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसरो हो गई। तो अगर अब मैं नासा की बात करूं, और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो आपका, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये किस रीजन में वर्क करता है? ये आपका इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है। इसने क्या किया? अभी 13.4 बिलियन ओल्ड लाइट को कैप्चर करा, जिसकी उन्होंने इमेज सेंड की, और अभी इन्होंने एक पहला अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट को भी डिस्कवर करा है, ठीक है? नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो यहाँ पे सिंपल जो आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है वो क्या रहेगी? 85, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इन 85 रैंक जो आई है, यहाँ पर आपको याद रखना है 59 कंट्रीज में इंडिया
आपको वीज़ा फ्री है, मतलब वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा इंडियंस को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। अगर वर्ल्ड हिंदी डे की बात की जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये आपका 10 जनवरी को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। इवन अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के द्वारा 800,000 US डॉलर्स प्रोवाइड किए गए थे ताकि हिंदी के यूज़ को UN में हम बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमूल कंपनी की। अमूल आपको पता है डेयरी कंपनी है, ठीक है। तो अमूल के द्वारा या फिर अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, कैसे याद रखेंगे, अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे RS सोडी, वो उन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अमूल जयन मेहता, इन्होंने इंटर्म MD की पोस्ट संभाल ली है, ठीक है। इनको इंटर्म चार्ज दे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रणेश की। प्रणेश तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये अभी 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। इन्होंने रिल्टन कप को जीता है, ठीक है। और इस रिल्टन कप को जीतने के साथ ही ये 79th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के, जो कि तमिलनाडु से हैं। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं फाइड की, फाइड के जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो कौन रहेंगे, फाइड के डिप्टी प्रेसिडेंट रहेंगे विश्वनाथ आनंद, जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और विश्वनाथ आनंद जो ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के पहले कब, 1988 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं RBI के द्वारा अभी रिसेंटली मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया, जो कि है उत्कर्ष 2.0। 2023 से लेकर 2025 तक इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा एक इंपॉर्टेंट स्टेट रह जाती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे मोबस सर्विस लॉन्च की गई थी, यहीं पे आपका पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम, यहीं पे पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च की गई थी। फिर अभी यहाँ पे 2023 में FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, 2 लोकेशन याद रखेंगे, राउरकेला और भुवनेश्वर में हो रहा है। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखनी है, राउरकेला उड़ीसा में इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बन रहा है, और इस बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया का नाम क्या रहेगा, ये है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। रिपीट, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये नाम रहेगा आपका इंडिया के लार्जेस्ट, इंडिया के बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम का। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट का। आई रिपीट, वर्ल्ड की पहली पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पर है, ये केरला में ओपन की गई। केरला में कहाँ पर, त्रिवंतपुरम में, ठीक है। वर्ल्ड की पहली पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, ठीक है, इसका म्यूजियम। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स, ठीक। अब आ जाते हैं जो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इनके नोट्स तो सभी को बनाने, चाहे वो पहली बार देख रहे हो चाहे बच्चे हमारी पुरानी वीडियो भी देखते हो, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट करके चलना है। चलिए सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं इंडिया की वो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G यूज केसेस। देखो 5G यूज केसेस क्या हो गए, देखो 5G को पहले आप ये समझिए 5th जनरेशन का ये इंटरनेट है, बहुत तेज़ इनकी स्पीड रहती है इंटरनेट की, 4G से भी 4th जनरेशन से तेज़ 5G रहेगा आपका, ठीक। आपकी बहुत अच्छी स्पीड आती है, जिसकी मदद से आप जो हैवी ड्यूटी टास्क होते थे जिसमें आपको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती थी, या फिर इंटरनेट बेसिकली क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, तो जिसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा होता था उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की जा सकती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस यहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो है विदिशा। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट के लिए फॉर 5G यूज़ केसेस। स्टार्टअप्स के द्वारा ये यूज़ केसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर यूज़ केसेस देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डॉक्टर को सपोज, जो आपके ऑटो एम्बुलेंस होती हैं उसमें बेसिक लाइफ सेफ्टी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, वाइटल्स को चेक कराने के लिए,
फिर उसी के साथ साथ कैटरैक्ट आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस में ये आपकी काम की जा सकती है। आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D विजुअलाइजेशन में ये आपके काम कर सकती है। लंग एंड ब्रेन स्कैन्स में आपकी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये बेसिकली काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि लॉन्च की गई हैं इस 5G यूज़ केसेस के ऊपर, ठीक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी जहाँ पे ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट हुआ? पहली डिस्ट्रिक्ट बनी यह है विदिशा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं फसाई की। फसाई ने भी नोटिफाई किया है पहले फर्स्ट एवर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। अब बासमती राइस के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्यों लॉन्च किए गए? देखो, आपने ब्रांड्स के बारे में सुना होगा, कोई भी ब्रांड होता है तो वो अपने राइट्स रखता है अपने पास, और इन ब्रांड्स की ना जब ये बहुत फेमस हो जाते हैं तो आपने देखे होंगे जो कॉपी भी बन जाती है, सस्ते में कॉपी बन जाती है, उनको आगे भेज देते हैं। तो इसीलिए जो बासमती राइस है इंडिया का, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत फेमस है फॉर इट्स फ्रेगरेंस और उसका यूनिक टेक्सचर के लिए। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम अगर किसी भी चीज़ को एक ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी पे बहुत फोकस होना चाहिए। क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार किसी भी आपके ने मतलब आप समझिए आपने कुछ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया और उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आ जाए, तो वो आपका कस्टमर, आपका जो वहाँ पे आपका सेलर था, उससे आपका कॉन्टैक्ट हट गया अब एकदम, ठीक है, वो ट्रस्ट खत्म हो गया। तो बेसिकली एम क्या था इसको इस्टेब्लिश करने का? टू इस्टेब्लिश फेयर प्राइजेस इन द ट्रेड ऑफ बासमती राइस, और जो हमारे कंज्यूमर इंटरेस्ट है डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल लेवल, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं 1 अगस्त 2023 से इनको लागू कर दिया जाएगा, ठीक। जो बासमती राइस होता है ये हमारा क्या है? ये फॉर नोन फॉर इट्स लॉन्ग ग्रेन, फुल्ली टेक्सचर और यूनिक इंटरेस्ट और यूनिक फ्लेवर के लिए, अरोमा के लिए जाना जाता है। ऑलराइट, अगर हम देखें स्टैंडर्ड्स क्या है, जो बासमती राइस होना चाहिए ना, इट शुड पोजेस अ नेचुरल फ्रेगरेंस। आपके कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं होनी चाहिए उस पर, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेज या पॉलिशिंग एजेंट्स यूज नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो स्पेसिफाई वेरियस आइडेंटिटी एंड क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर बासमती राइस सच एज एवरेज साइज ऑफ ग्रेन एंड देयर एलोंगेशन रेशियो आफ्टर कुकिंग एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ मॉइस्चर, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड यूएस एस्टेब्लिश न्यू ट्रेड ग्रुप टू बिल्ड सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स। आई रिपीट, रिसेंटली इंडिया एंड यूएस हैज एस्टेब्लिश नए ट्रेड ग्रुप को टू बिल्ड सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स। मतलब ऐसे सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स बनाना जिससे क्या है कि जो कॉस्ट कटिंग भी हो सके, ईजी भी हो सके, दोनों देशों को फ़ायदा हो सके, और इससे हम पॉल्यूशन ना के बराबर करें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में नया ट्रेड ग्रुप इस्टेब्लिश करने की बात की गई ताकि सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। अगर एक चीज़ मैं बात करता हूँ पीयूष गोयल जी की, ज़रा बताओ, पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे इनॉग्रेट किया था इन्होंने? पीयूष जी गोयल ने मैंगो फेस्टिवल को 5 सेकंड देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, बीबी में किया था। बताओ, 5 से 10 सेकंड लो, अपना आंसर सोचो क्या हो सकता है, एंड देन विल डिस्कस। कहाँ पर करा था पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट? तो ये किया था ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और रीज़न क्या था इनका? रीज़न था कि इंडियन जो वैरायटी हैं मैंगोज़ की, उनको हम प्रमोट कर सकें, उनकी मार्केटिंग कर सकें इन द ग्लोबल मार्केट्स, इन इंटरनेशनल मार्केट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। इस रिपोर्ट का जो नाम रहेगा वो है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। क्या है? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, और ये डाटा रिलीज फॉर 2023। इस रिपोर्ट में बताया गया इनके द्वारा कि जो 65 प्लस एज ग्रुप है ना, अभी अगर 2021 में देखें तो वो है 761 मिलियन पीपल। यही बढ़ के 2050 तक आपके 1.6 बिलियन हो जाएंगे। मतलब जो ओल्ड ग्रुप है हमारा 65 प्लस है, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन हो जाएगा 2050 तक।
अब देखो, अगर हम मॉरली बात करें, कल्चर के हिसाब से बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें, तो हमें अपने ओल्ड पेरेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर हम दूसरी जगह आ जाते हैं एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो जब हमारी ओल्ड जनरेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो हम देखेंगे जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक। जो वर्कर्स होंगे, क्योंकि एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक अगर हम पूरी दुनिया को एक बिजनेस समझे अर्थ को, तो काम करने वाले लोग होंगे तो हम देखेंगे हमारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन वहीं पे अगर जो ओल्ड जनरेशन होते हैं वो रिटायर ले लेते हैं, अगर हम देखें तो जो वर्किंग एज है ना 20 से लेके 50 साल तक की लोग अब काम करना पसंद करते हैं, उसके बाद जनरली दे डोंट वांट टू वर्क, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ऐसी सिनेरियो में क्या होगा, अगर लोग बढ़ते हैं, जो ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इवन कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है। इवन काफ़ी कंट्रीज़ में डाटा भी आया था कि लोग कंट्री, आपकी जो गवर्नमेंट है वो पे करने को रेडी है अगर जनरेशन्स, अगर यहाँ पे यूथ जो यंग बच्चे हैं वो उन कंट्रीज़ में जाके काम करें, बिकॉज वहाँ पे जो जनरेशन गैप देखने को मिलता है, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है। तो इसी डाटा में ये बताया गया। अगर हम इसकी बात करें, ये रिपोर्ट को यूएन के द्वारा रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया अंडेसा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। नॉर्दर्न अमेरिका, वेस्टर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है टू एक्सपीरियंस द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ओल्डर पीपल ओवर द नेक्स्ट 3 डेकेड। करंटली अगर हम अभी की बात करें, यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। फिर दूसरा आ जाते हैं, यूएन की एक और रिपोर्ट आई, और बेसिकली ये रिपोर्ट थी आपकी लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चिल्ड्रन मोर्टेलिटी। हम देख रहे हैं जब से आपकी वैक्सीन्स बनी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है हमने, फिर उसके बाद इंटरनेट का ग्रोथ देखा, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर हम 20 से 25 साल की बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, ठीक। हम देख रहे हैं जो पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी हमारे पास, तो कुछ भी दिक्कत होती थी तो इट टेंड टू बी अ फैटल फॉर ह्यूमन लाइफ। लेकिन अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए हमारे पास तरीके हैं चीज़ों को सॉल्व करने के, तो उसकी मदद से क्या हो रहा है कि जो हमारे डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो कहीं ना कहीं कम होता बढ़ता जा रहा है, लोगों जो डेथ रेट कम होता जा रहा है, और हम कहेंगे हम ज़्यादा साल तक अब जिंदा रह सकते हैं इजीली। तो अगर इसी के बारे में देखें तो एक रिपोर्ट आई लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी की। यहाँ पे बताया गया यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन के द्वारा कि एस्टिमेटेड ऑफ 5 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो गई बिफोर टर्निंग जस्ट 5 ईयर्स, मतलब, और 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो मतलब 50 लाख तक बच्चों की डेथ हो गई इवन बिफोर टर्निंग 5, विद नियरली 47% डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। 2021 की बात करें तो अनदर 2.1 चिल्ड्रन एंड यूथ बिटवीन द एज ऑफ 5 to 24 ईयर्स लॉस्ट देयर lives. According to report, mortality rates have decreased since 2000. Progress have showed in the last 12 years. जो प्रोग्रेस है वो स्लो गई है, लेकिन हम कहें तो मोर्टेलिटी रेट भी कहीं ना कहीं डिक्रीज ही हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ सेपरेट रिपोर्ट जो थी नेवर फॉरगेटन बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, अराउंड 1.9 बिलियन बेबीज वर स्टिल बॉर्न इन 2021, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी 150 एग्रीडोन लोन्स को अप्रूव किया गया फॉर द गरुड़ा किसान ड्रोन्स अंडर AIF। अब देखो, सबसे पहली चीज़ गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी। फिर आपको याद रखना है जो ये आपके किसान ड्रोन्स है ना, बेसिकली क्या है, ये आपके एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे किसान की टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स, आपकी इरिगेशन करने में भी मदद करेंगे। इसी के साथ साथ समझो कि जो ड्रोन्स को कौन चलाएगा, कोई पायलट ही चला रहा होगा कि कैसे मैन्यूवर करना है, कैसे घुमाना है, कैसे उड़ेगा, कैसे लेफ्ट राइट जाएगा, ऑन ऑफ करना,
उसको टेक्निकल डिटेल्स पता होंगी इसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के पायलट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। ठीक, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि लोग अपने फ्यूचर में इसको देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की फॉर 150 गरुड़ा एयर एग्री किसान ड्रोन्स के लिए, जिनको सैंक्शंस मिला है फॉर द अप्रूवल, लोन्स भी मिले हैं ताकि वो इनको डेवलप कर सकें एंड आगे लोगों को पहुंचा सकें अंडर द यूनियन किशन पुष्पक स्कीम। ये जो पार्टनरशिप है इस फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इससे क्या होगा, आपका लोगों को जो फार्मर्स है जैसे मैंने बताया उसमें काफ़ी हेल्प उन्हें देखने को मिलेगी। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो लार्ज स्केल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहीं पे लोगों को ड्रोन्स भी चलाना सिखाया जाएगा और जिसकी मदद से आगे उनको रिक्रूट भी करा जाएगा। ऑलराइट, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फिर मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? ए मनी मेखलाई जी। हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में और 1919 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई। एसबीआई के द्वारा भी ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। एसबीआई ने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म दैट इज एन ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद NESL जो कि है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। ये लॉन्च किया गया टू एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम डेज टू मिनट्स। NECL जो डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करता है ई स्टैम्प को और ई साइनिंग फंक्शंस को, जो फैसिलिटेट करेगा ई बैंक गारंटी प्रोसेस एंड ऑल्सो द बेनिफिशरीज विल इंस्टेंटेनियसली रिसीव एन ई बैंक गारंटी ऑन NESL's प्लेटफॉर्म विदाउट फर्दर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है रिटेल इन्फ्लेशन। हम बात करेंगे जो इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या है? जो महंगाई आ जाना। हम देख रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान में तो जो गुड्स का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 200% से राइज कर गया है। जैसे अगर मैं वीट की बात करूं तो हमें 200% का राइज देखने को मिल रहा है, अनियन में 200% का राइज देखने को मिल रहा है। अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स देखें तो कहीं पे 40%, 50%, 60%, 70% हमें प्राइस में राइज देख रहा है। और पाकिस्तान की जो अभी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो जैसे श्रीलंका में हुई थी ऑलमोस्ट वैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो ये कोई पाकिस्तान नहीं, इवन आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे तो जो रेंट्स हम बात करते हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखेंगे जो लोन लिया है लोगों ने और उस घर के लिए और उसको जो फिर वो EMI के तौर पे वापस पैसे भरने होते हैं उनको, वो भी आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं EMI बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से आप देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में महंगाई है। पेट्रोल बढ़ेगा तो आप देखेंगे डिफरेंट गुड्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका एक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो हमें CPI का डाटा देखने को मिला है ना वो हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, जिससे हम कह सकते हैं कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। जो CPI था वो डिक्रीज करके 5.72% रह गया इन द दिसंबर मंथ 2022 के लिए। अगर यही मैं डाटा देखूं नवंबर मंथ के लिए तो ये था 5.88%। ठीक है, तो हमें यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ऑरेंज हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन। लेकिन हम प्रेफर ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ना तो बाकी रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन इनमें क्या होता है आपका कार्बन कॉन्टेंट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में कि वो तो फिर भी पॉल्यूशन करेगा ही करेगा। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बर्न करते हैं ना तो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज होता है और ये हार्मफुल नहीं होता। ठीक, आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो आप ये समझिए इंडिया में नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब ग्रीन हाइड्रोजन पे काफ़ी बैट लगाई जा रही है और इसको फ्यूचर ऑफ फ्यूल समझा जाता है। तो इसीलिए इंडिया में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टार्ट किए गए हैं इन ऑर्डर टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी L&T ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद नॉर्वे बेस्ड H2 कैरियर ताकि फ्लोटिंग ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडस्ट्रियल स्केल applications. Under this MOU, L&T and H2C will become a partner for engineering, procurement, construction, installation and commissioning
of the top sites of H2C's floating process plant. नेक्स्ट बात करें कॉग्निजेंट की। कॉग्निजेंट ने अभी रिसेंटली रवि कुमार एस को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ब्रायन हम्फ्रीज को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉग्निजेंट। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं रवि कुमार एस की, तो ये अभी करंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ट्रांस यूनियन बैंक के हैं, जो कि कंप्यूटर यूनियन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, ट्रांस यूनियन के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से है। फिर इन्होंने ज्वाइन किया था कॉग्निजेंट आफ्टर सर्विंग फॉर 20 ईयर्स एट इन्फोसिस, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस को हैंडल किया। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉग्निजेंट फ्रॉम जनवरी 2016 टू अक्टूबर 2022। ऑलराइट, ऑल्सो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट एट भाबर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इन्होंने ज्वाइन किया इन्फोसिस को इन 2002। फिर कॉग्निजेंट की बात करें तो कौन सीईओ है अब? रवि कुमार एस। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू जर्सी यूएसए में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, यूएई ने अभी रिसेंटली अपने ऑयल चीफ सुल्तान अहमद अल ज़बैर को कॉप 2028 के क्लाइमेट प्रेसिडेंट की तरह घोषित कर दिया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। डॉक्टर सुल्तान अल ज़बैर ये प्रेसिडेंट बने हैं अभी रिसेंटली, क्लाइमेट प्रेसिडेंट फॉर कॉप 2028। कॉप 2028 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2018 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ठीक है, दो और एक चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ ये कब होगी और कहाँ पर होगी? यूएई में होगी। जो आपकी कॉप 28 की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होती है, ये आपकी कहाँ पर होगी? यूएई में, दुबई में होगी। ठीक है, 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच में होगी 2023 में। ठीक है, 28वां सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, सऊदी अरेबिया ने WWE को बाय कर लिया है। ठीक है, और किसी प्राइवेट फंड ने बाय किया है इसको। इसी के साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अल नसर क्लब है उनके लिए खेलेंगे, और लायनल मेसी ने भी अभी सीक्रेटली एक क्लब है उसको ज्वाइन करने की बात की गई ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, अलीबाबा सेल करेंगे अपना 3.1% स्टेक इन पेटीएम फॉर अराउंड $125 मिलियन वाया ब्लॉक डील। जैक मा यहाँ के ओनर थे अलीबाबा के, और आपको समझना है अलीबाबा एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रांड है ऑफ चाइना। और अगर हम देखें कहीं ना कहीं जो चाइना की हम लॉन्ग टर्म में जर्नी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो आपका अलीबाबा इट वाज वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स देयर। फिर पेटीएम की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट कंपनी कौन सी है? वो है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एपेक्स पार्टनर्स सेल्स देयर एंटायर स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी की। ये लास्ट वेसल है, 5th एंड लास्ट ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज कमीशन इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसको बनाया GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि एक PPP मॉडल पे इसको बनाया गया। आई रिपीट, ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी ये वो 5th एंड लार्जेस्ट वेसल है, 5th एंड द लास्ट वेसल ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज, जो कि कमीशन किया गया कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया अंडर PPP पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मर यूनियन शरद यादव जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, शरद यादव जी ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर, जिनका भी रिसेंटली गुरुग्राम हरियाणा में हो गया। 1947 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी ने अभी अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट वर्थ 76,867 करोड़ रुपीस अहेड
ऑफ द यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जो भी आपकी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में होगी, इसके होने से पहले ही आपको याद रखना है यूपी गवर्नमेंट ने 76,867 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट उठाई है, एंड फॉर दिस दे हैव साइंड 79 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखेंगे तो इसके अलावा काफ़ी स्कीम्स भी इनके द्वारा लॉन्च की गई थी बिफोर दिस प्रोग्राम, कि इन्होंने बोला था कि जो हमारी अर्बन बॉडीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं आपकी यूपी में, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें अपडेट करना है अहेड ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसी के साथ याद रखेंगे जो यूपी का एम क्या है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। इसी के साथ साथ इन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर गेम प्रोवाइड कर दिया है और उसी डिस्ट्रिक्ट में उस गेम को एक्सेल करने की बात की गई। ऐसे ही काफ़ी सारा गेम लॉन्च किए गए हैं ताकि इसको बढ़ावा मिल सके। यहीं पे जेवर एयरपोर्ट रहेगा, फिल्म सिटी यहाँ पे डेवलप करने जा रही है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों ये तो थे वन लाइनर्स, अब आ जाते हैं, और ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर क्विक रिवीजन पे। एमपी की, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट विदिशा, ये वो इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। फसाई ने नोटिफाई किया फर्स्ट एवर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। इंडिया एंड यूएस, इन्होंने इस्टेब्लिश किया न्यू ट्रेड ग्रुप टू बिल्ड सस्टेनेबल सप्लाई चेंज। People aged 65 plus worldwide will be more than double from 761 million in 2021 to $1.6 billion in 2050 as per UN। फिर UN ने ही एक रिपोर्ट रिलीज की कि 5 million children died before their 5th birthday in 2021। सेबी ने अलाउ किया AIFs को टू पार्टिसिपेट इन CDS ट्रांजैक्शन, अलाउ किया म्यूचुअल फंड को टू स्विच फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव ELS स्कीम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया 150 एग्री ड्रोन्स लोन्स को फॉर गरुड़ा किसान ड्रोन्स अंडर AIF। SBI ने लॉन्च किया ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को। रिटेल इन्फ्लेशन ईजीज टू 1 ईयर लो ऑफ 5.72% इन दिसंबर 2022। L&T ने पार्टनर किया H2 कैरियर के साथ टू डेवलप फ्लोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को। कॉग्निजेंट ने अपॉइंट किया रवि कुमार एज द CEO एंड ये सक्सीड करेंगे ब्रायन हम्फ्रीज को। UAE ने नेम किया ऑयल चीफ सुल्तान अहमद अल ज़बैर को एज द COP28 क्लाइमेट प्रेसिडेंट। अलीबाबा ने सेल किया 3.1% स्टेक इन पेटीएम फॉर 125 मिलियन वाया ब्लॉक डील। एपेक्स ने पार्टनर किया एंड सेल किया अपना एंटायर स्टेक इन द श्रीराम फाइनेंस। ICGS कमला देवी, ये वो लास्ट वेसल है एंड फिफ्थ एंड द लास्ट ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज, जो कि कमीशन किया जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड GRSC के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव का रिसेंटली निधन हो गया और यूपी ने अट्रैक्ट की इन्वेस्टमेंट वर्थ 76,867 करोड़ रुपीज अहेड ऑफ द यूपी GIS, जो कि फरवरी 2022 में होगी और फरवरी 2023 में होगी। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। चलिए स्टार्ट करें। पहला, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्ड रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ। सेकेंड, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहेंस कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, किस कंट्री के साथ। थर्ड, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। और यहाँ पे आपको इंडिया के पासपोर्ट की रैंक भी बतानी है और मेरे को बताना है कितनी कंट्रीज़ में इंडिया का जो आपका वीज़ा फ्री रहता है। चौथा, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल। फिफ्थ, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो दोस्तों ये थे आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके नीचे बताना है कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आपको लगता है ये कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं हमें कि क्या ये वीडियो हमें आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज वीडियो, ये सारी हम अपलोड करते हैं जिससे लोगों की, बच्चों की प्रिपरेशन होती रहे। और इसी के साथ साथ आप क्विज भी हमारी अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे आपको जाके मिल जाएगी। हमारी और वीडियो देखने के लिए करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब बार पे, जो कि अफेयर्स क्लाउड के चैनल पे आपको मेरी सारी वीडियोस
मिल जाएंगी. ठीक है, करंट अफेयर्स बाय विकास राणा. So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.